would like to take this opportunity to welcome each and everyone to our Sunday live webinar where we engage with our speakers who are inspirational personalities from the field of education. Before we move on with the amazing session that is lined up, I would like to let our new viewers know what actually Energory is. Well, Energory is a non-profit organization founded by Mr. Milind Datta in the year 2017. The basic objective of this platform is to connect and promote initiatives of various kinds that are striving for social change, building leadership and entrepreneurship skills in Assam and northeastern region of India. For the past many months, we have been trying to engage in our mission by effectively using this virtual platform where we invite people who have been exemplary examples in different walks of life to share their inspirational journey of struggles and achievements, which can definitely encourage hundreds of others to get inspired, learn, and strive hard in our own journeys and be an asset to our society. Moving on with our session, today we have someone very special with us, someone who is just 22 years old but has definitely molded herself as an inspiration for hundreds of others in a short span of time. Someone who has amplified the words that women who succeeds and pave ways for other women's development is what a real woman looks like. And we are so grateful to have among us a real woman, a real warrior who has been significantly working for empowering many other women and girls like her, me, breaking social taboos, and raising her voice for greater good, and prioritizing education as a weapon for women empowerment. We have Ms. Priyanka joining us from Delhi tonight. Welcome to our session, Priyanka. We are really glad to have you tonight. So, Thank you, Pallavi. yeah, so let me introduce our very special speaker with us. Although she doesn't need an introduction, she is a culmination of so much. So, she's basically a student of Masters in Social Work from IGNOU and works with Feminist Approach to Technology, that is FAT, a non-profit organization working with young women to build leadership and gender equal environment in the space of STEM and technology. So after joining FAT in 2014 as a participant, she completed all levels of the Young Women's Leadership Program, that is YWLP, and has joined as an intern in 2018. She used her stipend not only to fund her own education, but has also used it to pay for her brother's school fees. From 2015 to 2017, as a participant, Priyanka and her friends started two campaigns to raise awareness about early and forced marriage and reproductive health, and has also launched two short films called Toro Bandishe and Nanhi Boonde. She is also the first girl in her family to have a full-time job. So, does you all know why I have called her a real warrior by now? So, over to you, Priyanka, and welcome on board. Thank you, Pallavi. And हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका है और मैं फेमिनिस्ट अप्रोच टू टेक्नोलॉजी यानी कि फैट संस्था से हूँ। अभी मैं थोड़ा सा नर्वस और थोड़ा सा एक्साइटेड दोनों महसूस कर रही हूँ। लेकिन हाँ, थैंक यू फॉर हैविंग मी पल्लवी एंड अन्ना जोरी टीम फॉर दिस वेबिनार। थैंक यू सो मच। Yeah. Thank you so much, Priyanka. We are really glad to have you, and we are really looking forward to have an very enriching session ahead. So, Priyanka, as we start off with our session, I would just like to know, from coming from a family where you were the first woman to get a full-time job, from accomplishing yourself as a prominent name in women and girls empowerment and also in the field of education and technology, and being an inspiration to so many other girls and females,
How has your journey been till this recent milestone? Yeah, would you like to, throw a light on that? Yeah, I am really excited to know about it. ओके सो बेसिकली जहाँ मैं जिस परिवार से आती हूँ, Hmm. फैट में जुड़ने से पहले भी मेरी एक जर्नी रही है। मैं जिस परिवार से आती हूँ, मैं एक हिमाचल में एक छोटे से गांव से आती हूँ। और क्योंकि रोजगार की तलाश में मेरी फैमिली दिल्ली आई थी, और हम तभी से मैं दिल्ली में अपनी पढ़ाई वढ़ाई की। लेकिन मैं जिस परिवार से आती हूँ वहां पर हमेशा से ही लड़कियों की शिक्षा को लेकर इतना महत्व नहीं दिया जाता था। वो इसलिए क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर लड़कियां पढ़ेंगी तो ससुराल से जाना है उनको, तो क्या होगा, कुछ तो होगा नहीं, उनका पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। और साथ ही में एम्प्लॉयमेंट को भी इतना महत्वपूर्ण नहीं दिया जाता था वहां पे। सिर्फ और जिस फैमिली से मैं आती, वहां पर आज तक खासकर कोई भी लड़की ने अभी तक ग्रेजुएशन नहीं की है। मेरी जितनी भी कजन सिस्टर्स हैं उनमें से किसी ने अभी तक, सब 12th पास की हुई है, 10th पास की हुई, पर उससे ज्यादा किसी ने पढ़ाई नहीं की है। तो मेरे लिए जब मैंने अपनी 12th पास की, मेरे लिए एक बेनिफिट था कि मैं दिल्ली में रह रही हूँ। और तो मेरी फैमिली को मुझे मनाने में थोड़ी दिक्कतें हुई, क्योंकि मैंने जब अपनी फैमिली के सामने रखा कि मुझे आगे पढ़ना है, मुझे कॉलेज करना है। मेरी फैमिली फाइनेंशियली इतनी स्टेबल, इतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो उन्होंने मुझे साफ बोल दिया कि हम तुम्हें पढ़ने से नहीं रोक रहे हैं, पर तुम्हें अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद ही उठाना पड़ेगा। तो फिर मैंने अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद ही उठाया, और अभी मैं मास्टर कर रही हूँ, जैसे पल्लवी आपने बताया ही। लेकिन Mhm. ये एक चेंजेस था मेरी फैमिली में, जिसके कारण अब मेरे बाद की जो जनरेशन है, वो अब आगे पढ़ सकती है। और साथ ही में मैं अपने घर की इकलौती पहली एक ऐसी लड़की हूँ जो जिसने बोला कि नहीं, मुझे कमाना है, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है। क्योंकि हमारे परिवार में माना जाता है कि लड़कियां सिर्फ चूल्हा चौखा के लिए बनी हैं, उन्हें कमाना नहीं चाहिए। तो वो एक मेरे लिए काफी स्ट्रगल था उस टाइम पे, क्योंकि जब मैंने अपनी इंटर्नशिप शुरू की थी, मुझे उस टाइम पर भी मुझे काफी बोला गया था कि अभी मत जाओ, और मेरे लिए टाइम लिमिट्स बांधे गए थे। काफी रिस्ट्रिक्शन था मेरी फैमिली मेरे लिए भी, कि अच्छा आप जा रहे हो जाओ, लेकिन आपको 5 बजे 5:30 बजे घर आ जाना है। तो वो रिस्ट्रिक्शन को ब्रेक करना भी मेरे लिए शुरुआत में काफी मुश्किल था। लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी पढ़ाई एक जरिया थी मुझे मेरे पैरों पे खड़ा होने का, तो मैंने बोला कि मुझे पढ़ना है। और क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे पैरों पे खड़ा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली में अपनी जो भी जितनी महिलाएं हैं, मेरी मम्मी हो, मेरी दादी हो, मेरी चाची हो, मैंने सबको स्ट्रगल करते हुए देखा है। चाहे वो क्योंकि वो इकोनॉमिकली पावर नहीं थी, तो जो भी उनके ऊपर होता था, चाहे जो भी वायलेंस होती थी, उन्हें चुपचाप सहना पड़ता था। तो मैं चाहती थी कि मैं अपनी जिंदगी में मैं उस दौर से नहीं गुजरना चाहती हूँ, और मैं नहीं चाहती कि मेरी फैमिली में बाकी जो मेरी आने वाली जनरेशन है वो उस दौर से गुजरे। तो मैंने कहा कहीं ना कहीं तो ये चेन को ब्रेक करना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो ये शुरुआत मुझसे ही सही। तो ये था, और मैं इसको लेकर मैंने काफी अपनी मम्मी से बात की कि मुझे क्यों एम्पावरमेंट होना है, मुझे क्यों नौकरी करनी है, मुझे क्यों पढ़ना है। मैंने उनसे बोला कि देखो, आपने नहीं पढ़ाई की है, लेकिन आप चाहते हो कि मैं भी नहीं पढ़ूं, आप चाहते हो कि जो आपने जिंदगी जी है, जो आपने स्ट्रगल किया, वो सेम मैं भी करूं। तो वहां मेरे लिए एक हमेशा से वो उनकी स्टोरी से कनेक्ट करना मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं अपनी फैमिली, मुझे लगता है कि फैमिली को अपने ड्रीम्स में शामिल करना बहुत जरूरी है। जो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन मैंने उनको अपने सपनों में शामिल किया। और ये सब कुछ जो है वो मैंने फैट से सीखा है कि कैसे अपने अपने सपनों में अपने परिवार को शामिल किया जाता है, कैसे उनके साथ नेगोशिएशन किया जाता है, मोलभाव किया जाता है उनके साथ अपने सपनों को पाने के लिए। तो ये मैंने उनके साथ सीखा। तो यही था मेरा माइलस्टोन, जिस तरीके से मैंने किया। तो जैसे आपने बताया प्रियंका कि आस पड़ोस में सब लड़कियां लाइक चूल्हे चौके में जाके लाइक दे यूज्ड टू एंड अप लाइक दैट वाज द माइलस्टोन फॉर देम, लाइक क्योंकि सोसाइटी ने ऐसे बांध दिया था कि ये लड़की है तो बस यही काम है, यही अल्टीमेट डेस्टिनेशन है। तो वैसे एनवायरनमेंट में तुम्हें मतलब हाउ डिड यू रियलाइज कि हाउ डिड यू गेट द गट्स to come out of it, मतलब suddenly like how did you think of breaking the chain and कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, I want to do something different. So like कोई ऐसा इंसिडेंट था या फिर कोई ऐसा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन था जो मतलब which has helped you to break all the chains that was around you to come out and make your own life.
सो बेसिकली मैंने जब फैट ज्वाइन किया था उससे पहले मुझे सिर्फ पढ़ना था। हाँ मुझे लगता था कि जो मैं सपने देखती हूँ पढ़ना एक तरीका है जिससे मैं पा सकती हूँ। जब मैंने फैट ज्वाइन किया, क्योंकि फैट तकनीकी सिखाता है और मुझे कंप्यूटर सीखना था, तो मेरे अपने परिवार से बात रखी थी कि मुझे कंप्यूटर सीखना है, लेकिन उन्होंने बोला हमारे पास पैसे नहीं है और हम आपको नहीं सिखा सकते हैं, आप कोई और तरीका ढूंढो इसको सीखने का। अ, तो मैंने अ, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं अपना तरीका ढूंढूंगी। मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि यहाँ कंप्यूटर सिखाया जाता है, मैं वहां पर गई कंप्यूटर सीखने के लिए। जब मैं कंप्यूटर सीख रही थी, क्योंकि फैट तकनीक के जरिए इंडिविजुअली मुझे मौका मिला था उस दौरान पे कि कैसे मैं खुद को जान सकूं। मैं कंप्यूटर के जरिए जरिए मैं सीख रही थी कि मैं कौन हूँ, प्रियंका, हु रियली आर प्रियंका, व्हाट शी वांट, आई रियली गेट टू नो व्हेन आई एम इन फैट। सो जब मैंने वो सीखा, तो इसके बाद, क्योंकि मैं मुझे लगता था कि मैं अपनी पसंद को बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन मुझे मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं हमेशा, मुझे किसी ने पूछा तुम्हारी पसंद क्या है, मुझे फैट में पूछा कि तुम्हारी पसंद क्या है, मैंने कहा डिस्कवरी चैनल देखना मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। उन्होंने बोला क्यों? मैंने कहा क्योंकि मेरे घर में मेरा भाई वो देखता है और मैं भी उसके साथ देखती हूँ, इसलिए मुझे पसंद है। तो क्या वो सच में मेरी पसंद थी, या फिर क्योंकि वो देखता था मुझे मौका नहीं मिलता था, तो वो देखने मुझे मौका ही नहीं मिलता था टीवी देखने का, तो जो वो लगाते थे मैं वही देखती थी, तो वही वही मेरी पसंद बन गई, पर सच में वो मेरी पसंद नहीं थी। तो इस तरीके से मैंने खुद को जाना, मेरे घर में कैसे भेदभाव दिखता है मेरे मेरे भाई के बीच, मेरे मम्मी पापा के बीच, कैसे हमारे घर में सत्ता दिखाई देती है। मैंने स्लोली स्लोली फैट के अंदर जाकर ही ये सब कुछ सीखा समझा तकनीक के जरिए। तो तकनीक के जरिए जानने को मौका मिला कि किस तरीके से क्या हो रहा है मेरे परिवार के अंदर, कहाँ क्या दिख रहा है। और मैंने स्लोली स्लोली इस पे बात करना शुरू किया अपनी फैमिली के अंदर, डिस्क्रिमिनेशन के अंदर, क्यों मुझे समानता चाहिए, उसको लेकर मैंने अपनी फैमिली के अंदर बात करना शुरू किया। और वहीं से ये जो ब्रेक द चेंज है ना, मुझे वहीं से मिला कि ये स्टॉप करना पड़ेगा, कहीं तो किसी ना किसी को करना पड़ेगा मेरी फैमिली में, तो वो मैं पहली पर्सन। तो मैंने वहीं से अपना स्टॉप करना सीखा। एक्चुअली मैं जिस गांव से बिलोंग करती हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली में रहती हूँ लेकिन मैं हर साल अपने गांव जाती हूँ। मेरे गांव में मैं अपने गांव की पहली लड़की थी जिसने नौकरी करना शुरू किया। उसके बाद मेरे गांव में बाकी लड़कियों ने कमाना शुरू किया, मुझे देख देख कर। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं, चाहे मुझे देख कर ही सही या कोई और वजह थी, लेकिन एटलीस्ट वो ब्रेक हुई चेन जो बहुत लंबे समय से चलती हुई आ रही थी। तो ये था, और फैट ने मुझे वो प्लेटफॉर्म दिया, या मुझे, कि मैं किस तरीके से अपने आप को समझ सकूं। फैट हमेशा फैट बेसिकली तकनीक के जरिए ही सामाजिक मुद्दों पे लड़कियों की जानकारी को बढ़ाता है, उनको बोलता है अपने अधिकारों को लेने के लिए, लेना सिखाता है कि कैसे हम अपने अधिकारों को ले सकते हैं। मुझे मेरे अधिकार भी नहीं पता था कि शिक्षा पाना एक मेरा अधिकार है, मुझे लगता था मैं कुछ एक्स्ट्रा मांग रही हूँ। जब मुझे फैक्ट में पता चला कि नहीं, समानता मेरा अधिकार है, और मुझे मिलनी चाहिए मेरे भाई जितनी ही समानता, जो मेरे भाई को मिल रहा उतना ही मुझे भी मिलना चाहिए। ये सब मुझे फैट में आकर ही पता चला, और यही सब फैट में जितना मैंने सीखा है, जितना मेरे साथ जितने भी लड़कियों ने सीखा है, और जितना मैं लड़कियों के साथ अभी काम कर रही हूँ, सबने धीरे धीरे यही आके सीखा है। एक ऐसा स्पेस बनाता है जहां पर मैं खुल के अपनी बातें कर पाती हूँ, तो ताकि मैं सीख सकूं कि मैं क्या चाहती हूँ, जान सकूं मैं क्या चाहती हूँ। तो ये फैक्ट करता है। Exactly. This is very inspirational, Priyanka. Like you're a real social, change maker. मुझे ये बताना ही पड़ेगा सीरियसली। लाइक एक ऐसे जगह से आके अपने आप को ऐसे एस्टैब्लिश करना और खुद को एज एन इंस्पिरेशन, इतने दूसरे लड़कियों को तुमने इतना इंस्पायर किया, आई मीन दैट्स हाईली कमेंडेबल प्रियंका। सो प्रियंका, जैसे तुमने बताया कि फैट हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ, राइट? तुम अभी जहाँ पे हो, तुम्हारा नज़रिया, योर पर्सपेक्टिव्स, योर पॉइंट ऑफ व्यूज टुवर्ड्स लाइफ एंड एवरीथिंग हैज चेंज्ड, राइट? सो लाइक तुम like would you like to tell our viewers like what actually fat is, क्या चीज के लिए काम कर रहा है, how is it functioning, its vision and objectives, like it has been the most pivotal strength for you, right? So yeah, even we want to know like what's there in for fat for common girls and women. Yeah. फैट फैट फेमिनिस्ट अप्रोच टू टेक्नोलॉजी, हम फैट बोलते हैं।
हाँ। तो फैट किशोरी लड़कियों और युवा महिलाओं के साथ काम करता है उनकी लीडरशिप को लेकर, ठीक है। हम्म। तकनीक के जरिए, क्योंकि तकनीक एक ऐसा माध्यम है जहां पर देखा गया है कि जेंडर गैप बहुत बड़ा है। बहुत ज्यादा। और हम्म। बहुत ही ज्यादा, जैसे आपने बोला, बहुत ज्यादा है। हम्म। और क्योंकि देखा जाए तो जब मैं तकनीक को लेकर, मुझे डर लगता था तकनीक को लेकर, ठीक है। तो तकनीक के जरिए कैसे लड़कियों के अंदर लीडरशिप लेके आना, फेमिनिस्ट लीडरशिप, ठीक है, उनके अधिकारों को लेकर, ताकि लड़कियां एक लीडर के तौर पर अपनी ही कम्युनिटी में काम कर सके, या फिर वो अपनी जिंदगी में वो डिसीजन मेकर बन सके। तो फैट हमेशा से उस जेंडर गैप को कम करना चाहता है जो तकनीकी में दिखाई देता है। और हमेशा से ही देखा गया है कि जो हमेशा से ये देखा गया है कि हमेशा फैट जो है, क्योंकि हमारे रिस्ट्रिक्शन कब शुरू होते हैं, जब हमारे पीरियड शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो फैट ने इसलिए चुना कि हम क्यों ना किशोरी लड़कियों, युवा महिलाओं के साथ काम करें। जहां से रिस्ट्रिक्शन शुरू होते हैं वहीं से पहले हम काम शुरू करते हैं। और हमेशा से ये मिशन विजन रहा है कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में लड़कियां मेकर, डिसीजन मेकर और क्रिएटर बन सके, ताकि, क्योंकि तकनीकी सिर्फ एक एक ही जेंडर का नहीं है, तकनीकी जितने भी जेंडर उन सभी की है, ठीक है। तो हम्म। इसीलिए भी फैट तकनीकी के साथ, लड़की के साथ काम करता है। तकनीक एक टूल है जिसके माध्यम से, क्योंकि तकनीक जल्दी से सिखाई नहीं जाती है, तो फैमिली भी भेज देती है, यहाँ पे सब लड़कियां ही सीखती हैं, तो फैमिली आसानी से लड़कियों को फैट के अंदर भेज देती है कि अच्छा लड़कियां ही सिखा रही हैं तो आप जाओ सीखने के लिए। तो वहां से लड़कियां सीखती हैं तकनीक को। लेकिन तकनीक के जरिए लड़कियां अपने खुद के अधिकारों को जानती हैं, उनको क्लेम करती हैं अपने परिवार में, अपने समुदाय में, वो मुद्दों की समझ बनाती हैं। चाहे वो जेंडर हो, चाहे वो यौनिकता हो, पितृसत्ता हो, हास्यकरण हो, जितने भी मुद्दे हैं उनकी समझ तकनीक के जरिए बनाती हैं। और उसको लेकर फिर वो अपने सवाल, और उसको कैसे ब्रेक किया जाए, जो हमारे समुदाय में पहले से ही मिथ है, वो ब्रेक करती हैं। टेक्नोलॉजी के जरिए सीख सीख के अपने समुदाय में वो ब्रेक करती हैं। तो फैट रियली इस तरीके से काम करता है, लड़कियों के साथ काम करता है। और फैट लड़कियों को एक सेफ स्पेस प्रोवाइड करता है, ताकि लड़कियां एक ऐसे स्पेस में आके अपनी खुल के बात कर सकें, लड़कियां हिंसा के ऊपर अपनी बातें शेयर कर सकें। तो ये सब कुछ फैट करता है, लेकिन तकनीकी एक माध्यम से हम काम करते हैं। या Priyanka, you're working with the Young Women's Leadership Program in fact, right? जिसके सारे लेवल्स तुमने क्लियर किए एंड नाउ तुम वहीं पे काम कर रहे हो, लाइक व्हाट इज दिस यंग वुमेन्स लीडरशिप प्रोग्राम, लाइक तुम भी वहीं से आए हो एंड लाइक व्हाट इज इट लाइक? सो यू कैन सी इट लाइक यंग वुमेन लीडरशिप प्रोग्राम, या। यंग वुमेन्स को लीडर बनाना, दिस इज द प्रोग्राम। सो बेसिकली इस पूरे प्रोग्राम में लड़कियां, फर्स्ट इसमें हमने 3 लेवल्स बांट रखे हैं। पहला, इंडिविजुअली लड़कियां खुद को जानती हैं, खुद की लीडरशिप को लेकर काम करती हैं, और थ्रू कंप्यूटर, कंप्यूटर वो सीखती हैं, बेसिक कंप्यूटर के जरिए ही वो ये सारे काम करती हैं, जिसमें वो खुद को लेकर जानना सीखती हैं, खुद की लीडरशिप लेना सीखती हैं। खुद के परिवार के अंदर वो जो छोटे छोटे जो भेदभाव होते हैं उनको पहचानना सीखती हैं, अपनी फैमिली के साथ अपने सपनों को लेकर नेगोशिएशन करना सीखती हैं। लेवल 2 होता है जिसमें लड़कियां कलेक्टिव, क्योंकि एक हम होता है कि हम इंडिविजुअल लीडरशिप लेना, दूसरा होता है कलेक्टिव होकर लड़कियां अपने समुदाय में अपने अधिकारों को लेकर बात करती हैं। और उसमें मीडियम होता है फिल्म, फिल्म के जरिए लड़कियां ये काम करती हैं, फिल्म फोटोग्राफी के जरिए ये पूरा का पूरा इस टूल का प्रयोग कर कर वो कम्युनिटी के सामने अपने अधिकारों को लेकर बात करती हैं, अपने मुद्दों को लेकर बात करती हैं। तीसरा होता है जहाँ पे लड़कियां सीखती हैं कि कैसे हम एम्पावर हो सकते हैं, जहाँ पे इंडिविजुअल लीडरशिप और कलेक्टिव लीडरशिप दोनों का मिक्सचर होता है, जहाँ पे लड़कियां सीखती हैं कि कैसे हम क्योंकि जिन लड़कियों के साथ हम काम करता है वो लड़कियां बहुत ही उनको मौके नहीं मिले होते। हम उन लड़कियों के साथ काम करते हैं, उस समुदाय के साथ काम करते हैं जहाँ पे लड़कियों को मौके नहीं मिले होते तकनीक का प्रयोग करने के लिए। तो हम उन लड़कियों को उन लड़कियों के साथ जब काम करते हैं तो वहां पर एजुकेशन इतनी हायर नहीं होती है। और साथ ही में जो लेवल 3 होता है जिसमें लड़कियां अपने आप को अपना एज प्रोफेशनल काम करना सीखती हैं,
एज प्रोफेशनली वो अपनी लीडरशिप लेना सीखती हैं और अपनी राइट्स को लेना सीखती हैं एज प्रोफेशनली। तो ये होता है लेवल 3। सो यंग वुमेन लीडरशिप में बेसिकली ओवरऑल जो देखा जाए तो लड़कियां लीडर बनना सीखती हैं। और लीडर्स वो अपने अपने परिवार में, अपने समुदाय में अपने अधिकारों को लेकर, अपने जो दूसरी लड़कियां उनके अधिकारों को मांगना सीखती हैं, उनको लेना सीख लेती हैं और अपने समुदाय में अपने अधिकारों को लेकर बात करती हैं ताकि वो जो समानता है वो आ सके उनके खुद के समुदाय में। लेकिन वो माध्यम हमेशा तकनीक अपनाती हैं। तो ये पूरा यंग वुमेन लीडरशिप प्रोग्राम है। Okay, it's really a commendable program and an initiative, to empower women and be leaders in their own lives. So, फैट का एक मॉडल भी है, दैट्स कॉल्ड FAT मॉडल। सो इस मॉडल को बहुत जगहों में अपनाया गया है, लाइक it's seriously something which is very good that has been framed and modeled by fat. So like वो model actually क्या है, like, and why people are trying to implement that model in their work scenarios also, like what is it? So बेसिकली फैट का मॉडल तकनीक है, क्योंकि तकनीक पे ज्यादा लोग काम नहीं करते हैं और स्पेशली तकनीक को सामाजिक मुद्दों से जोड़कर ज्यादा लोग काम नहीं करते हैं। तो इसलिए ये अपने आप में ही यूनिक है। फैट अभी 4 राज्यों में काम कर रहा है, दिल्ली, बिहार, पुणे और झारखंड। क्योंकि तकनीक अपने आप में ही बहुत जरूरी क्या बोले, एक जरूरी महत्वपूर्ण चीज बन चुकी है अपने आप में ही। क्योंकि तकनीक के बिना आज आज हम भी तकनीक के साथ ही जुड़े हुए हैं, इसलिए हम ये वेबिनार कर पा रहे हैं। Yes. तो तकनीक बहुत जरूरी चीज बन गई, तो इसीलिए। और तकनीक ज्यादा जगहों पे सिखाया नहीं जाता है, और साथ में तकनीक और मुद्दे बिल्कुल नहीं सिखाए जाते, क्योंकि ये देखा गया है कि तकनीक, या तो तकनीक सीख लो या मुद्दे सीख लो, ठीक है। तुम तकनीक में कभी भी भेदभाव नहीं दिखा सकते, कंप्यूटर में कभी भी आप माहवारी नहीं सिखा सकते। मैंने कंप्यूटर के जरिए माहवारी को सीखा है। मैंने कंप्यूटर के जरिए अपने घर के अंदर की पावर को सीखा है। और जब तकनीक जो है, जिन लड़कियों के साथ हम काम करते हैं, इवन मैं खुद भी जिस समुदाय से आती हूँ, मैंने जैसे बताया पहले भी आपको कि काफी जो हमें मौके नहीं मिले होते हैं, तो हमारे, और साथ ही साथ हमारे अंदर तकनीक को लेकर काफी डर भी होता है। पहला तो ये होता है कि तकनीक को लेकर जो है डर को भगाना होता है। हम ये एक यूनिक अपने आप में, क्योंकि ये होता है ना कि हम कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर जब सीखते हैं तो बोलते हैं अच्छा ये है, आप इस तरीके चलाना सीखो। मुझे अच्छे से याद है, जब मैं स्कूल में सीखती थी अपने स्कूल में, तो मुझे टीचर ना कभी ये नहीं बोला है कि तुम यूज मत करो। उन्होंने हमेशा मुझे यूज करने को दिया, लेकिन खुद ही खोल खाल के दे दिया होता था, कंप्यूटर ऑन करके दे देते थे। फ्लैट में मैंने कंप्यूटर के सीपीयू को खोल के देखा है कि सीपीयू कैसे, किस तरीके से काम करता है। अच्छा, मदरबोर्ड क्या होता है, किस तरीके से काम करती है, चिप क्या होती है, वो खोल के देखा। तो इसीलिए भी अपने आप में यूनिक है, क्योंकि पहला तकनीक से डर भगाया जाता है और ये बताया जाता है कि तकनीक सिर्फ एक जेंडर यूज नहीं कर सकता है, तकनीक हर जेंडर यूज कर सकता है, और तकनीक का यूज करना हर जेंडर का अधिकार है। ये सिखाया जाता है, इसलिए भी अपने आप में बहुत यूनिक है। क्योंकि फिर इसमें फैट जब काम करता है लड़कियों के साथ, तो बहुत ही सेफ स्पेस को लेकर काफी बात करता है, कलेक्टिव लीडरशिप को लेकर काफी बात करता है, उनकी खुद की इंडिविजुअल लीडरशिप को लेकर काफी बात करता है। और फैट में हमेशा वही लोग सिखाते हैं, मेरी उम्र के ही लोग मुझे सिखाते थे। मुझे अच्छे से याद है, जब मैं पहली बार सीखने गई थी तो मेरी ही उम्र की थी जिन्होंने मुझे कंप्यूटर सिखाया था। हम लोगों के बीच शायद 2-3 साल का अंतर होगा, तो वो सहज बनाते हैं माहौल को। तो इसीलिए भी ये बहुत अपने आप में यूनिक है, क्योंकि ये सच्ची में मुझे बहुत मदद किया था। जब मुझे किसी ने, मेरी उम्र के इंसान ने मुझे सिखाया था, मेरे लिए वो स्पेस बहुत जरूरी था, क्योंकि वहां पे मैं खुल के अपनी बातें बोल पा रही थी और काफी मैं सेफ अपने आप को महसूस करी थी। हमेशा फैट में ये बोला जाता है कि मिस्टेक करना गलत बात नहीं है, मिस्टेक तभी करते हैं जब हम कुछ करते हैं। तो वो स्पेस हमेशा से रहा है कि हम गलतियां करें और उसको सुधारें भी। तो इसीलिए भी ये अपने आप में यूनिक रहा है, क्योंकि वो फ्रीडम का जो स्पेस है और मुझे कुछ नया ट्राई करने का जो स्पेस है वो देता है फैट, हमेशा से ही। तो इसीलिए ये मॉडल अपने आप में ही बहुत यूनिक है। Okay, Priyanka.
सो जैसे आपने अभी बताया, लाइक कलेक्टिव एंड इंक्लूसिव सक्सेस, ग्रोथ एंड एम्पावरमेंट इज व्हाट फैट एज एन ऑर्गेनाइजेशन लुक्स फॉरवर्ड टू, राइट? अभी जैसे आपने बताया, एक साथ काम करना, इंक्लूसिव ग्रोथ, सक्सेस एंड इंक्लूसिव एम्पावरमेंट ऑफ women in all walks of life, like from the grassroots level, right? So, and there's an advocacy initiative, like is one such approach which FAT is working with. And under this, I guess they work with the grassroots level organizations, so so that they can enhance, collective growth. So what is the motive behind such initiatives? Like, do you think like women in urban areas and rural areas, like they can be differentiated on the way they handle technology? And like, is FAT working by differentiating rural and urban women, or is by prioritizing one over another, or what is the motive behind this advocacy initiative? And how do you, approach the women of urban and rural areas? Because I believe like there's some kind of technology gap and difference between these two stratas. So yeah, Priyanka, over to you. या सो बेसिकली मैं अर्बन से हूँ क्योंकि मैं दिल्ली में पली बड़ी हूँ। ठीक है, मैंने बिहार के रूरल एरिया में भी काम किया है। ठीक है, जो मैं देख पाई हूँ अभी तक टेक्नोलॉजी को लेकर, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जब मैं बिहार में जब बक्सर की लड़कियों के साथ काम कर रही थी या मुजफ्फरपुर की लड़की के साथ काम करती, उनका भी वही सेम एक्सपीरियंस था। उनका मुझसे कोई अलग एक्सपीरियंस नहीं था। उनको भी शुरुआत में जब उन्होंने कैमरा छुआ था, उन्हें डर लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि वो खराब कर देंगे, उन्हें लग रहा था कि वो तोड़ देंगे कैमरे को। उन्हें वो डर लग रहा था, जो कि मुझे याद है, मुझे भी लग रहा था जब मैं कंप्यूटर को पहली बार छू रही थी, जब मैं तकनीक को पहली बार छू रही थी। और उन्हें भी, जैसे मुझे नहीं पता था कि महिलाएं भी कैमरा चला सकती हैं, महिलाएं भी फिल्म बना सकती हैं, वैसे उन्हें भी नहीं पता था कि महिलाएं कैमरा छू सकती हैं। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, हम जब मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, कुछ अर्बन और रूरल एरिया में महिलाओं के पास जो मौके होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, लेकिन टेक्नोलॉजी को लेकर जो मैंने अभी तक अपनी अपनी जिंदगी में अभी तक एक्सपीरियंस किया है कि कुछ जगहों पे एक्सपीरियंस बिल्कुल सेम है, कुछ जगहों पे जो भेदभाव है वो बिल्कुल एक जैसे हैं। टेक्नोलॉजी को लेकर जो डर बिठाया गया वो बिल्कुल एक जैसा बिठाया गया। मैं अर्बन में थी, मुझे मुझे फिर भी डर बिठाया गया था। और जो बक्सर में जो जिनके साथ मैं काम करती हूँ, उनके अंदर भी सेम ही डर बिठाया गया था। उनको भी बोला गया था, आप तकनीक नहीं छुएंगे, खराब हो जाएगी आपकी तकनीक। तो बहुत जरूरी है कि दोनों के साथ काम किया जाए। हम अप्रोच हमेशा सेम ही रखते हैं। कोई अप्रोच में कभी भी फैट ने कोई डिफरेंस नहीं किया कि अगर हम अर्बन लड़के के साथ कर रहे हैं तो इस अप्रोच से काम कर रहे हैं और दूर के साथ इस अप्रोच से। हमेशा अप्रोच सेम होती है। तरीके भी तो उन अप्रोच को करने के अलग अलग होते हैं, वो सिनेरियो के हिसाब से बहुत मैटर करता है। लेकिन लड़कियां तकनीक का यूज कर सकें और उसके जरिए अपने मुद्दों को अपने परिवार और समुदाय में रख सके, ये अप्रोच हमेशा से सेम रही है। और लीडरशिप ले सके, ये हमेशा से अप्रोच रही है। और उसी अप्रोच के साथ हमने अभी तक जितनी भी जगहों पे काम किया, उसी अप्रोच के साथ काम किया, ताकि लड़कियों की लीडरशिप बढ़े, लड़कियों के जो अधिकार जो उनसे लिए जा रहे हैं उसको लेकर लड़कियां खुद से अपनी मांग कर सके। अगर मैं अगर मैं अपनी कजन सिस्टर के अधिकार को लेकर बात करूं तो शायद इतना भाव नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर वो खुद ही अपने अधिकार को लेकर बोलेगी ना, तो ज्यादा महत्व दिया जाएगा। तो ये हमेशा से ही रहा है। ओके प्रियंका, सो जैसे लाइक आपने बताया कि द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन इज हाईली डायनामिक, like, and considering the way technology is unfurling itself, it has become very crucial to bridge the gap between humans and technology. बट कहीं ना कहीं जैसे आपने बताया, महिलाओं और तकनीकी में एक बहुत बड़ा गैप है अभी भी। सो हम लोग लाइक ऑफन एक चीज एनकाउंटर करते हैं कि women are not that tech savvy. so so what do you think, like in a decade, आज से 10 साल में, do you think कि ये सिनेरियो चेंज हो सकता है? like, or where do you see this field, women in technology in 10 years ahead from now on? like, क्या ये सेम रहेगा, और क्या women will take over technology, or women will come close to technology? Like, what's your vision like regarding this field after 10 years? क्योंकि तुम ऐसे ही एक फील्ड में काम कर रही हो, या
and we definitely want to know your vision. Yeah. सो बेसिकली फैट का विजन मेरा विजन बहुत ऑलमोस्ट जुड़ गया है। Hmm. महिलाएं टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सके, उसका निर्माण कर सके और उसको लेकर डिसीजन मेकिंग कर सके। ठीक है, अभी हम 21वीं शताब्दी में 21 सेंचुरी में हम जी रहे हैं। ठीक है, जो धीरे धीरे डिजिटल होता जा रहा है, और अगर ऐसे में अगर महिलाएं टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना नहीं सीखेंगी तो हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हम नहीं बोलेंगे कि हम सच्ची में आगे बढ़ रहे हैं और हम विकासशील हो रहे हैं, जबकि एक महिला वर्ग जो है वो अगर उसका प्रयोग नहीं करेगी, अगर हमें सच्ची में अपने आप को विकासशील बोलना है और हमें आगे जाके विकसित होना है, तो हमें महिलाओं को टेक्नोलॉजी यूज करना सिखाना होगा, उनको टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लाकर उस पर डिसीजन मेकिंग और मेकर के तौर पे अपनाना होगा। हम उस चीज को लेकर मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। ठीक है, और रहा सवाल 21 साल बाद ये दुनिया कैसी होगी, मुझे लगता है 21 साल बाद या 10 साल बाद ये दुनिया पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी से भरी होगी। और मैं चाहती हूँ कि उस जब वो टेक्नोलॉजी से भरी होगी तो उसमें महिलाओं का और बाकी सारे जेंडर का सेम योगदान रहे। किसी ऐसा ना हो कि किसी सिर्फ एक जेंडर का योगदान उसमें रहे। अभी महिलाएं टेक्नोलॉजी का यूज करना सीख रही हैं, उसको लेकर उसको बना भी रही हैं, और ऐसा नहीं है कि ये अभी से हो रहा है। अगर हम देखें तो अगर हम बहुत पीछे भी जाएं तो भी महिलाएं टेक्नोलॉजी का यूज करती थी। बस ये है कि हमारी जो हिस्ट्री है उसमें उनके नाम नहीं आते थे, लेकिन उन्होंने यूज किया है, उन्होंने बनाया भी है टेक्नोलॉजी को। हम देख सकते हैं कंप्यूटर में एडा लवेस ने कंप्यूटर्स के बनाने की वो उसने भी कोशिश की थी। ठीक है, लेकिन उनका नाम नहीं है उसमें, लेकिन सिर्फ जिन्होंने कंप्यूटर बनाया है चार्ल्स बेगस उनका नाम है। तो वही कि महिलाएं पहले से टेक्नोलॉजी का यूज करती थी, उसको बनाती थी और डिसीजन मेकिंग भी करती थी, बस उनका नाम नहीं है। और अभी हम चाहते हैं कि वो आए सामने, और टेक्नोलॉजी में महिलाओं को आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, और महिलाएं टेक्नोलॉजी यूज कर सकती हैं। ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी बोल रहा है कि अच्छा तुम पुरुष तुम टेक्नोलॉजी यूज करो, तुम महिला तुम टेक्नोलॉजी मत यूज करो, ऐसा कुछ नहीं है। टेक्नोलॉजी कभी भी कोई भी जेंडर नहीं देखता है, ये हम इंसान हैं जो उसको उस तरीके से देखते हैं। हमें बस अपना नजरिया बदलना होगा देखने का, चीजों को देखने का। तो टेक्नोलॉजी में भी हमें अपना नजरिया बदलना होगा, और हमें देखना पड़ेगा कि महिलाएं भी टेक्नोलॉजी यूज कर सकती हैं, उसको बना सकती हैं और डिसीजन मेकिंग भी कर सकती हैं। हम्म। तो जैसे लाइक प्रियंका अभी तुमने बताया कि टेक्नोलॉजी इतना इम्पोर्टेंट है महिलाओं के लिए बेसिकली टू टू मेक अ सोसाइटी विच प्रेफर्स इक्वालिटी। सो अगर हम लोग अभी हमारे देश का प्रेजेंट एजुकेशनल सिनेरियो और स्ट्रक्चर को अगर कंसिडर करें, तो क्या तुम्हें लगता है कि लाइक इट्स sufficient to envision a movement of young women, who can be the planners of change for lives in the society by nurturing leadership individually and collectively? And like तुम्हारे एक्सपीरियंस से लाइक तुम इस मतलब सिनेरियो को लेके व्हाट डू यू थिंक, लाइक इज आवर एजुकेशन सिस्टम sufficient for empowering women and making them come closer to technology? सो ऐसा है कि आई नो हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी भी बहुत हद तक उन्हें काम Hmm. करने की जरूरत है, लेकिन मुझे लगता है कि हर चीज मुमकिन है इस दुनिया में। तो मुझे लगता है कि अगर हम सभी मिलकर हम अगर सभी मिलकर वो बदलाव चाहते हैं तो वो मुमकिन है, बदलाव लाना जो हम देखना चाहते हैं। लेकिन वही है कि उसमें सभी को अपना उतना ही हिस्सेदारी निभानी पड़ेगी। सिर्फ अगर आप और मैं अगर सिर्फ टेक्नोलॉजी को लेकर काम करेंगे तो वो बदलाव आएगा जरूर, लेकिन बहुत लंबे समय बाद आएगा। लेकिन जब हम सब मिलकर अगर वही बदलाव चाहते हैं, हम सब मिलकर काम करेंगे टेक्नोलॉजी को, महिलाओं को टेक्नोलॉजी की फील्ड में लाने का, तो लगता है मुझे कि वो जल्दी बदलाएगा, जिसके लिए हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी उसको लेकर काम करना होगा। और जितना मैं कहूँ हमारा एजुकेशन सिस्टम स्लोली स्लोली, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है। और वही है ना कि एकदम से सारे बदलाव नहीं आते हैं, बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे ही धीरे धीरे करके बदलाव आते हैं। तो अभी महिलाएं यूज करना सीख रही हैं, बहुत जगहों पे महिलाएं बनाना भी सीख रही हैं, बहुत टेक्नोलॉजी महिलाएं बनाती भी हैं। एक ऐसा भी समय मुझे लगता है आएगा जरूर जब महिलाओं की और बाकी सारे जेंडर की से एक समान भूमिका होगी टेक्नोलॉजी को लेकर। Okay. वो मैं वो देख पाती हूँ
वो थोड़ा लंबा है वो सफर, लेकिन मुझे लगता है हम पा सकते हैं। यस डेफिनेटली प्रियंका, तुम्हारे जैसे इंस्पिरेशनल हो पर्सनालिटीज तो डेफिनेटली मे बी हम लोग बहुत जल्दी वहाँ पहुँच जाएंगे। और अगर प्रियंका, इफ यू वुड लाइक टू सजेस्ट मतलब कुछ चेंजेस इन आवर एजुकेशनल स्ट्रक्चर, तो व्हाट वुड इट बी लाइक? अगर कुछ बदलाव लाना चाहिए हमें अभी, द थिंग्स, few changes that needs to be done in a priority basis, तो वो क्या क्या हो सकता है? लाइक जैसे बेसिकली सो स्कूल्स, लाइक कुछ कुछ स्कूल्स में लाइक कंप्यूटर्स होते हैं, कहीं पे नहीं होते हैं, फिर कहीं पे सिर्फ थियोरेटिकल ज़्यादा पढ़ाया जाता है, टेक्निकल ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, थ्योरी नॉलेज होता है बट प्रैक्टिकली उतना नहीं कर सकते हैं। सो जैसे टेक्नोलॉजिकल स्किल एनहेंसमेंट के लिए लाइक क्या क्या हम लोग कर सकते हैं हमारे एजुकेशनल स्ट्रक्चर में चेंजेस, या फिर खुद से भी लड़कियां क्या कर सकती है टू इनकलकेट दैट टेक्नोलॉजी थिंग इन देमसेल्व्स, कैसे टेक्नोलॉजी के पास आ सकते हैं? सो जो मुझे लगता है, जो हम ट्रैक में करते हैं, मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है कि ये हमारे स्कूल सिस्टम में इसको डाला जाए कि मैथ सिर्फ लड़कों के लिए बनी है, ये ना कहा जाए। मैथ उतना ही लड़कों के लिए जितना लड़कियों के लिए है, ठीक है? क्योंकि मुझे लगता है कि वो जो शुरू से ही ना मैथ को लेकर, साइंस को लेकर जो डर बिठाया जाता है, मुझे लगता है वो उसको शुरू से ही ना बिल्ड करके, बल्कि सभी को इक्वली मौका देना चाहिए कि आप यूज करो, ठीक है? और हम साथ में गर्ल इन स्टेम एक हमारा प्रोग्राम है जहाँ पर लड़कियों को हैंड्स ऑन तरीके से हम सिखाते हैं कि कैसे लाइट वर्क करती है, इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से वर्क करती है। अच्छा, अगर हमारे न्यूटन क्या होते हैं, और मैथ्स किस तरीके से, मैथ्स के जो एनसीईआरटी के जो जितने भी उन्हीं के चैप्टर्स होते हैं, उसी से हम चीजें उठाते हैं और उनको हैंड्स ऑन तरीके से सिखाते हैं। हम उनको कारपेंट्री भी सिखाते हैं, उसमें मैंने खुद भी फैट में आकर ही कारपेंट्री के थोड़ा थोड़ा सेशन लिए हैं और वहीं से सीखा है। तो ये हैंड्स ऑन तरीके से सिखाना बहुत जरूरी है, किस तरीके से केमिकल काम करते हैं। क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब मैं साइंस में थी और जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, और मेरे साथ ये हुआ था कि हमारे एक टीचर को एक केमिकल को मिक्स करके दिखाना था, लेकिन उन्होंने हमें बस दूर से दिखा दिया और कहा जाओ, हमें खुद यूज करने को नहीं दिया। मुझे लगता है वो खुद से यूज करना बहुत जरूरी है, और हैंड्स ऑन तरीके से सिखाना बहुत जरूरी है लड़कियों को, ताकि उनका डर भाग सके तकनीक को लेकर। और एक जो थिंकिंग प्रोसेस है ना हमारा, जो हमारे अंदर धारणा बनी है कि तकनीक या स्टेम सिर्फ लड़कों के लिए, मुझे लगता है उसको बहुत अपने स्कूल के सिस्टम में बदलने की जरूरत है। मुझे याद है जिस स्कूल में मैं पढ़ती हूँ, वहां पे सिर्फ 6 लड़कियां थी साइंस के फील्ड में, सिर्फ 6 लड़कियां। तो ये बहुत ही कम नंबर है स्कूल के, अगर मैं देखूँ स्कूल के सिनेरियो से। और वहीं पे जो मैं आर्ट्स स्टूडेंट थी, मेरी क्लास में खुद 46 लड़कियां थी। तो नंबर्स कितना चेंजेस है। तो वही बहुत जरूरी है कि साइंस को लेकर हमें हैंड्स ऑन तरीके से काम करना होगा, और वो डर हटाना होगा कि साइंस सिर्फ एक जेंडर के लिए बना है, साइंस सभी जेंडर्स के लिए बना है। वो टीचर्स के अंदर वो पॉइंट ऑफ व्यू लाना मुझे लगता है बहुत जरूरी है, क्योंकि टीचर्स ही सिखाते हैं सभी स्टूडेंट्स को। तो अगर मुझे मेरी टीचर से नहीं बोला था कि अच्छा तुम साइंस मत लो क्योंकि तुम्हारे नंबर कम आए, तो शायद मैं साइंस नहीं होती आज। लेकिन उन्होंने मुझे बोला था कि तुम्हारे नंबर कम आए, तुम साइंस मत लो, फेल हो जाओगी, तो इसलिए मैंने साइंस नहीं ली थी। तो मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है कि टीचर्स को एनकरेज करना चाहिए, और वो हैंड्स ऑन जरूरी है। या सो प्रियंका, लाइक जैसे तुम यू आर वर्किंग विद दिस फील्ड ऑफ स्टेम, टेक्नोलॉजी एंड साइंस, राइट? सो व्हाई डू यू थिंक कि महिलाओं को टेक्नोलॉजी और स्टेम के फील्ड में एम्पावरमेंट देना बहुत ज़्यादा क्रूशियल है टू इंश्योर वुमेन एम्पावरमेंट इन रियल सेंस? क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी से हम क्या करें, वी नीड टू रेज आवर वॉइस, लाइक हमें अपने राइट्स के बारे में पता चल जाए, पॉलिटिकल साइंस बुक पढ़ लेंगे तो हो जाएगा शायद, हम लोग विल बी एबल टू रेज आवर वॉइस, ऐसा कुछ people might think that way. So but why do you think it's important for women to be empowered in the field of science and technology?
So वैसा क्यों है? Like what's your view regarding this? Okay, so basically एज मुझे बहुत अच्छे से याद है जब मैं 16-17 साल की थी। Hmm. और मेरे घर में 16-17-18 शायद, तो मेरे घर में शादी को लेकर मुझ पर दबाव बढ़ने लगा था, क्योंकि मेरी फैमिली में 20 साल तक शादी जाती, और उस टाइम Hmm. में फैट जाती थी, और फैट में और भी बहुत सारे मेरे साथी आते थे। हम लोगों ने साथ में मिलकर बात किया। जब मैंने उन्हें बोला यार मेरे ऊपर शादी का दबाव, तो किसी एक और लड़की ने मेरे साथ में बोला यार मेरे ऊपर भी शादी का दबाव है। हम दोनों के ऊपर शादी का दबाव था, और जब धीरे धीरे हम अपने ग्रुप में बात की, सभी के ऊपर शादी का दबाव था। तो फिर हमने क्या किया, शादी को लेकर हमने एक फिल्म बनाया जिसको तोड़ो बंदी से कहते हैं। ठीक Hmm. है, और उस टाइम हम कैमरा सीखे थे, हमने कहा चलो, और हमने अपने फैमिली के सामने, अपने समुदाय के सामने ये बात रखी कि मुझे शादी क्यों नहीं करनी है। जल्द और जबरन शादी का मतलब क्या है मेरे लिए? जल्द का मतलब ये नहीं कि अगर 15 साल के बाद शादी कर दी तो वो जल्द है और जबरन है, नहीं। मेरे लिए, और हम, और फैट की परिभाषा में जल्द और जबरन शादी का मतलब, अगर मैं 40 की भी हूँ और अगर मेरी शादी करने के लिए मुझे बोला जा रहा है, तो वो जल्द और जबरन शादी ही है मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए तो वो जल्दी है, शायद मैं नहीं करना चाहती अभी शादी। तो इसीलिए तो मुझे मौका मिला तकनीक के जरिए अपनी बातें सामने रखने का। मुझे लगता है तकनीक एक बहुत ही अच्छा माध्यम है जो सभी मेरा को कार्ड क्यों सीखना नहीं चाहिए, इस्तेमाल और किया इसके तुमने? जरिए लोग। क्या है? Uh, Giti, can you mute other participants in the meeting? Yes, thank you. Yes, Priyanka, you can continue. Yeah. तो मुझे लगता है कि तकनीक बहुत ही जरूरी है सभी के लिए सीखने के लिए, और क्योंकि तकनीक के जरिए मैं अपने अधिकारों की मांग कर सकती हूँ। मुझे तकनीक के जरिए पता चलता है कि आज की दुनिया में क्या हो रहा है, वो कैसे मुझे इफेक्ट कर रहा है, मुझे पता चलता है। मुझे पता चलता है कि मैं अपने आप को एजुकेट कर सकती हूँ तकनीक के जरिए। मैं अपनी फैमिली को बता सकती हूँ कि तकनीक उनकी जिंदगी में किस तरीके से प्रभावित कर रही है, और मुझे लगता है कि तकनीक बहुत ही एक जरूरी माध्यम बन चुका है। यस। सो जैसे अभी तुमने तकनीक के बारे में बताया, लाइक यू हैव यूज्ड दिस मास मीडिया टेक्नोलॉजी टू रिच टू द ऑडियंस। इसके माध्यम से तुमने अपने आवाज को बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचाया। सो प्रियंका, लाइक यू हैव बीन अ वॉरियर। जैसे अभी तुम्हारा स्टोरी हमें पता चला फ्रॉम वेयर यू केम एंड today where you are, so you are a real change maker, right? So, and you have raised your voice to raise awareness about significant issues, right? And two most significant issues that you have taken up was related to early and forced marriage and reproductive health of women. And जैसे आपने बताया कि तोड़ो बंदिशे and नन्हे बूंदे are two documentaries that you have made along with your friends. So, तुम्हें ये चीज के अगेंस्ट में वॉइस रेस करने के लिए और ये शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज बनाने के लिए व्हाट मेड यू डू दिस? जैसे एक तो पता चला कि यू वर फोर्स्ड टू गेट मैरिड एंड दैट इज हाउ यू मेड तोड़ो बंदिशे, एंड लाइक व्हाट्स द मोटिव बिहाइंड मेकिंग नन्ही बूंदे? एंड तुम्हें लगता है कि यूजिंग ऑल दिस मास मीडिया टेक्नोलॉजीज, इससे हमारे सोसाइटी में एक लाइक पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस आता है? एंड लाइक do you think like these are the ways in which we can really empower women and make our voice reach the grassroots level of society? मुझे लगता है हाँ, क्योंकि बेसिकली मुझे मौका मिला था इसके जरिए अपने समुदाय में ये बात रखने का कि मुझे शादी नहीं करनी है। मेरे अगर मुझ पे जब शादी का प्रेशर डाला जाता है तो मुझ पे क्या बीतती है, ये दोनों फिल्में बहुत अच्छे से इसको दिखाती हैं। शादी से पहले, शादी के बाद किस तरीके से मेरे शरीर पे असर पड़ेगा, उसको बताया जाता है, उस मुद्दे को बताया जाता है उस फिल्म के जरिए, जो शायद मैं अपनी फैमिली के साथ या अपने समुदाय में बात नहीं कर पा रही थी, लेकिन वो मुझे मौका देती है फिल्म वो बात करने को उनके सामने। क्योंकि हम हमेशा फिल्म के बाद डिस्कशन करते हैं, जो मुद्दे फिल्म में दिखाए गए हैं हम हमेशा कम्युनिटी के सामने उस पर चर्चा करते हैं। और ऐसा नहीं है कि कम्युनिटी कभी कभी उनको एक्सेप्ट भी करती है, वो मानती है कि हाँ प्रेशराइज किया गया है, और वो स्टॉप भी होता है। मुझे मेरे घर में वो प्रेशराइज स्टॉप हुआ है, मेरे घर में खुद वो शादी का जो जवाब था वो रुका है।
वो कुछ ही समय के लिए रुका, लेकिन हाँ वो समय मेरे लिए काफी अच्छा समय था जब रुक गया। तो वो जो नेगोशिएशन था ना, वो मुझे मौका मिला उस फिल्म के जरिए अपनी फैमिली के साथ करने का। मैंने उन्हें बोला कि मुझे शादी नहीं करनी है। और मुझे बहुत अच्छे से याद है जब मैं अपने समुदाय में वो फिल्म दिखा रही थी, हम उसमें जब महिलाओं को जब वो फिल्म दिखाते हैं तो महिलाएं भी कनेक्ट करती हैं, उनको वो भी समझती हैं कि, और बहुत दफा बताते हैं कि जब उनकी जल्दी शादी थी उनके ऊपर क्या बीती थी। बहुत सारी समुदाय की, और वो उस टाइम हम जब बात करते हैं वो बोलती है कि नहीं, हम अपनी बेटी की शादी जल्दी नहीं करवाएंगे, जब वो चाहेगी हम तब शादी कराएंगे। ये असर भी पड़ा है महिलाओं के ऊपर, ये असर भी समुदाय में हमारे पड़ा है। और मैं मुझे याद है जब हमने बिहार में ये फिल्म दिखाई थी, तो वहां पे भी बहुत सारी लड़कियां, क्योंकि फैमिली के सामने वो अपनी वो बातें नहीं बता पाई थी, तो उन्होंने हमें, हम जब उनके सामने बात करे, चर्चा करते, उसके बाद चर्चा के बाद लड़कियां ने आके बोला कि मेरे को भी शादी का दबाव है, लेकिन ये फिल्म देख के मुझे लग रहा है मैं अपनी मम्मी से बात कर पाऊंगी। ठीक है, तो ये बदलाव आता है, बदलाव चाहे धीरे धीरे ही आता है, लेकिन इस फिल्म के जरिए और उस पर चर्चा करने के बाद वो बदलाव मैंने देखा है, मेरे परिवार में, मेरे समुदाय में देखा है। और मुझे लगता है कि ये जो फिल्म है वो मौका देती है मेरा खुद का मुद्दा रखने का, क्योंकि मैं हमें ना कभी कभी हम जो झेल रहे होते हैं, हमें मौका नहीं मिलता उसको रखने का, बताने का। ये टेक्नोलॉजी एक जरिया बनता है अपनी बातें रखने का, मुझे लगता है। और और वो मुझे मौका मिला और मैंने उसको रखा। तो मुझे याद है जब मैंने अपनी फैमिली को नन्ही बूंदे दिखाई थी, मेरी नीचे की एक आंटी जब वो नन्ही बूंदे देख रही थी, क्योंकि उनकी जल्दी शादी हो गई थी और अभी उसका असर उनके बॉडी पे दिख रहा है, तो वो रो रही थी और वो कह रही थी कि मुझे जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए थी। वो मुझे अब समझ में आ रहा है कि मेरी बॉडी पे क्या उसका असर हो रहा है। तो जो फिल्म है वो सिर्फ मुद्दे को नहीं दिखाती, बल्कि एक अवेयरनेस भी दिखाती है कि आपकी बॉडी पे क्या असर दिख रहा है, उसकी वजह से क्या होता है। तो वो सब कुछ जो है, मुझे लगता है मास मीडिया जो है वो करती है काम। हर चीज को यूज करने के कुछ ना कुछ फायदे होते हैं, कुछ ना कुछ नुकसान होते हैं। हमने फायदे भी देखे हैं, ऐसा नहीं कि हमें नुकसान नहीं हुए हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब मैं अपनी पास के एक समुदाय में फिल्म स्क्रीनिंग करने गई थी, तो एक महिला ने बोला था कि लड़कियां भाग जाती हैं। अब बताओ हम कैसे उनको हम शादी नहीं करें उनके 18 साल में, या उससे पहले शादी नहीं करें, लड़के तो भाग जाती हैं। ठीक है, तो वो जो भागने का जो है ना, समुदाय में बहुत बड़ा वो है, धारणा बनी है कि भागती है तो गलत काम है। ठीक है, तो इस चीज को लेकर भी हमने अपने समुदाय में काफी बात की कि आपने कभी पूछा उनसे कि भागती क्यों है वो, क्यों भागना पड़ा उन्हें, किस लिए, क्या आपने उससे बात किया कभी? तो इससे ये होता है कि एक लड़की और उसकी फैमिली के बीच की जो बॉन्डिंग है वो भी बनने का मौका मिलता है। मेरी मम्मी और मेरे बीच वो बॉन्डिंग बनने का मौका मिला, अपनी बातें रखने का मौका मिला। आज मैं अपनी मम्मी के साथ मैं हर तरीके की बात कर सकती हूँ, उन्हें हर तरीके की बात बता सकती हूँ, वो मेरे साथ शेयर करती हैं। लेकिन अगर मैं वही बात करूँ फैट से पहले, वो ऐसा नहीं होता था, मैं उनके साथ हर बात नहीं शेयर कर सकती थी, मैं उनके साथ हर बात नहीं बोल सकती थी। लेकिन अब वो मौके हैं मेरे पास और उनके साथ मैं बात कर सकती हूँ। तो मुझे लगता है कि इस फिल्म ने मुझे वो दिया है। थैंक यू। It's important to connect to other stories. उनके कहानियों से भी कनेक्ट करना ज़रूरी है और उसके माध्यम से ही हम एक दूसरे से और अच्छे से कनेक्ट करते हैं। जैसे तुम और तुम्हारी मम्मी, जैसे तुमने बताया था कि अपने मम्मी को कि आपका इतना जल्दी शादी हो गया है ना, आपने इतना सब कुछ सहा, एंड दैट्स हाउ यू कनेक्टेड टू हर स्टोरी, एंड उसीलिए शायद अभी तुम लोग दोनों यू बॉन्ड सो मच। हाँ, लेकिन प्रियंका, जैसे तुमने कहा कि आज भी हमारे देश में ऐसे बहुत से किस्से मतलब हमें सुनने में आती है कि एक उम्र बीत जाने के बाद ही लड़कियों को शादी का प्रेशर, ये वो अभी भी आ रहे हैं, एंड not everyone has got that opportunity to make a bond with their families and others. So उन लोगों के लिए, like, do you have some kind of message और कुछ कहना चाहती हो, like, so that even if they come across this session, maybe they can get inspired or maybe take away something very important from here. Yeah, क्योंकि सबको वो ब्रेक द बेसिकली चेन वाला
सबको वो ब्रेक द चेन वाला, जैसे यू हैड दैट इन यू, not everyone has that guts and not everyone can do it. So but we want others to do it, right? So like what is your message or mantra for them, so that they can get inspired from here? Although तुम्हारा लाइफ ही एक इंस्पिरेशन है, yes. So but if you want to say and add something to it, yes, what would it be? सो बेसिकली जो मैं अपने लिए अपनाती हूँ, क्या मुझे सच्ची में ये चाहिए? अगर मैं अगर मुझे चाहिए, सो यस, मैं उसके लिए अपनी फैमिली के साथ नेगोशिएशन करूंगी, ठीक है। लेकिन मैं कभी नहीं चाहूंगी कि लेकिन अगर मेरी फैमिली नहीं मानती, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं नहीं करूँ। मुझे पता है कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। पता है, हम ना हमेशा से ही, क्योंकि जिस फैमिली के स्ट्रक्चर में मैं रही हूँ, उनको लगता है कि हमेशा से वो मुझे भी बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं अपने अच्छा बुरा नहीं जानती। मुझे पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो मुझे लगता है कि मैं जानती हूँ मेरे लिए क्या अच्छा है या बुरा है। मुझे पता है कि अगर मैं ये अपना निर्णय लेती हूँ, उससे क्या मेरे लिए फायदा है, क्या नुकसान है। ठीक है, आप मेरे साथ हो तो बहुत अच्छा, हम साथ में इस निर्णय को लेते हैं। अगर आप मेरे साथ नहीं हो, फिर भी मैं ये निर्णय लूंगी। अगर मुझे शादी नहीं करनी है तो नहीं करनी। अब मेरी फैमिली उस निर्णय के साथ हो या नहीं हो, मुझे पता है कि जब फैमिली साथ में नहीं होती तो बहुत मुश्किल होती है। क्योंकि वो मैंने अपनी फ्रेंड के साथ देखा है कि उनको कितनी मुश्किल हुई जब वो शादी का डिसीजन मेकिंग कर रही थी, और उनकी फैमिली जब उनके साथ नहीं थी। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि मैं वो निर्णय ना लूं, क्योंकि मुझे मेरे अच्छे अच्छे बुरे के अलावा कोई और नहीं जानता कि मेरे लिए क्या अच्छा है। मेरी फैमिली भी को नहीं पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा क्या बुरा है, सिवाय मेरे अलावा। क्योंकि वो सिर्फ मुझे उनकी नजरों से देखें, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं क्या हूँ और मैं किन नजरों से अपने आप को देखती हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर कोई लड़की चाहती है कि वो शादी ना करे, तो कोई जल्दी नहीं है, मत करो शादी। जरूरी नहीं है जिंदगी में, शादी के अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो जरूरी हैं। तो ये मैं हमेशा अपनी मम्मी से ही बोलती हूँ कि मेरी जिंदगी में शादी अभी जरूरी नहीं है। मुझे नहीं पता भविष्य में जरूरी होगी कि नहीं, लेकिन हाँ, अभी मेरे लिए जरूरी नहीं है। अभी जो मेरे सपने हैं मुझे उन्हें पूरा करना है। मेरा तो मैं अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ूंगी। जो मेरे लिए जरूरी है मैं वही करूंगी। अब मेरी फैमिली साथ में है, मुझे पता है बहुत सारी लड़की की फैमिली साथ में नहीं होती है। हाँ, एक्चुअली मेरी फैमिली में सिर्फ कुछ ही लोग साथ में हैं। मेरी फैमिली में पूरे लोग मेरे साथ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ रही हूँ। क्योंकि हमेशा मेरे साथ मेरी जिंदगी में हर कोई साथ नहीं देगा। शायद कुछ लोग साथ देंगे, कुछ नहीं देंगे, पर इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मैं अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ू। मुझे तो बढ़ना होगा, वो मेरी जिंदगी है, क्योंकि मेरे तरीके से जीना है मुझे। तो ये है। वही सेल्फ सफिशिएंट बनना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तुम्हारी फैमिली ने बोला कि वी कैन नॉट टेक फॉरवर्ड योर एजुकेशन, तब तुमने अपने आप का एजुकेशन और अपने भाई का एजुकेशन अपने हाथों में लिया एंड यू वर्क फॉर इट। तो या देयर आर वेज, वी जस्ट नीड टू सी इट। सो प्रियंका, ऐसा भी होता है लाइक अगर कहीं पे लड़कियों का मन है, दे वांट टू बट दे कैन नॉट, राइट? जैसे तुम दिल्ली में थे and you got to know about FAT, but not every other girl can have it, and like FAT is working in specific areas of the country. So do you think like there is anything in Assam and northeastern region जिससे यहाँ के लड़कियां कनेक्ट कर सकेंगे, या फिर यहाँ के लड़कियां फैट से कनेक्ट कर सकेंगे? सो मे बी उससे यहाँ के लड़कियों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगे। तो वैसा क्या है? लाइक डू यू हैव एनीथिंग टू से ऑन दिस? सो बेसिकली अभी तो ऐसा कुछ मतलब ऐसा नहीं है। हम कनेक्टेड ऑनलाइन हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बोले हमारा अभी करिकुलम ऑनलाइन नहीं है। हमारे पास कोई ऐसा ऑनलाइन मीडियम नहीं है कि असम की लड़कियां भी घर बैठे बैठे जो भी हम सिखाते हैं वो सीख सकें। अभी हमारे पास नहीं है। आई होप हमारे पास फ्यूचर में वो जल्द ही आ जाए, लेकिन अभी हमारे पास नहीं है। लेकिन लड़कियां हमारे साथ कनेक्ट हो सकती हैं, असम की भी। लेकिन वही है कि हमें लेकिन मुझे नहीं पता वो कैसे होगा, क्योंकि अभी तक मैंने उसके लिए अभी सोचा नहीं है। लेकिन अगर कोई चाहता है हम फैट के साथ कनेक्ट होना, तो वो हो सकता है। मोस्ट वेलकम टू फैट। क्योंकि हम और साथ में अभी
क्योंकि हमें भी पता है कि हम सभी लड़कियों तक नहीं पहुंच सकते हैं, फ्लैट एक अकेला सभी लड़कियों तक नहीं पहुंच सकता है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि जैसे मैं अकेली, मैं मेरे परिवार में जो 10-12 लड़कियां थी मैं उन तक पहुंची हूँ, ठीक है। मेरे समुदाय में लड़की तो उनके उन तक पहुंची हूँ। तो क्योंकि एक लड़की दूसरी लड़की को पहुंच सकती, दूसरी लड़की तीसरी लड़की को, तो अभी फैट कोशिश कर रहे हैं कि लड़कियों का कलेक्टिव ग्रुप बने, और जो लड़कियां जिस समुदाय में रहती हैं वो, और ताकि वो बाकी और लड़कियों तक पहुंचे, क्योंकि फैट हर लड़की तक नहीं पहुंच सकता है, लेकिन बाकी लड़कियां, जो लड़कियां फैट से ऑलरेडी जुड़ी वो तो दूसरी लड़कियों तक पहुंच सकती है ना। तो इस तरीके से ये जर्नी इस तरीके से जारी रह सकती है। तो इस तरीके से अभी हम कलेक्टिव कोशिश करें कि लड़के कलेक्टिव ग्रुप बाकी लड़कियों तक पहुंचे, जिन तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो आई होप सो सून हम असम भी पहुंच पाएंगे। यस रियली, मे बी यहाँ के सब वही वेट कर रहे हैं, लाइक वी ऑल्सो नीड इनिशिएटिव्स लाइक दिस। और यहाँ पे आजकल गवर्नमेंट्स के भी स्किल प्रोग्राम्स होते हैं, टू गिव फ्री कंप्यूटर एजुकेशन, वो सब। बट देन वहाँ पर भी देखा जाए तो वो रेशियो थोड़ा डिसप्रोपोर्शनेट रहता है, मे बी ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, और मे बी ड्यू टू सोशल tabus or some things. So, yeah, Priyanka, do you think like all these social taboos that are in and around us? So, how it is a hurdle for, making women or females, girls come closer to technology? I mean, वही जैसे आपने बताया कि जैसे हम सुनते हैं ना, women are not that tech savvy. तो ओ तुम्हें ये Yeah. डाउनलोड करना नहीं है, मुझे दो, मैं कर देता हूँ, एंड ऑल दिस थिंग लाइक। सो वैसा कुछ like apart from other initiatives, like how this social taboos are a basic hurdle for this, or apart from such initiatives, लड़कियां घर बैठे how they can come close to technology, वैसा क्या क्या जरिया हो सकता है? कि हम लोग घर पे ही रहे, वी हैव अ स्मार्टफोन, जैसे स्मार्टफोन सबके पास रहता है, और मे बी लैपटॉप। तो वो लैपटॉप और स्मार्टफोन के जरिए, या फिर जस्ट स्मार्टफोन के जरिए, हाउ लड़कियां घर से ही दे कैन कम क्लोज टू टेक्नोलॉजी, या और ये सोशल एक्चुअली अगर टैबूज का देखा क्या रोल जाए, है? या या एक्चुअली अगर देखा जाए तो हमारे हमारे चारों तरफ टेक्नोलॉजी है। हम्म फैन इज टेक्नोलॉजी, ठीक हम्म है। हम अभी जिस तरीके से बात करें टेक्नोलॉजी, इवन हमारे घर में जो भी चीजें बनी हुई हैं उनमें टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है, बिना टेक्नोलॉजी के वो बनी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि ह्यूमन टेक्नोलॉजी से दूर है और महिलाएं उससे दूर हैं, बस हम्म उन्हें पता नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी है। क्योंकि देखा जाए तो कंप्यूटर, लैपटॉप, रिमोट, फ्रिज, इन्हीं को टेक्नोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। और ज्यादातर जो इंटरनेट से जुड़े हुए सिस्टम्स होते हैं उन्हें टेक्नोलॉजी बोला जाता है। लेकिन फैन भी एक टेक्नोलॉजी है। हमारा हम जो जिस घर में, जिसमें हम अगर देखा जाए, जिसमें चाकू जो है वो टेक्नोलॉजी की वजह से ही बना, उसको बनाने में किसी न किसी तकनीक का प्रयोग हुआ है, तो वो भी एक टेक्नोलॉजी का ही वो हुआ, टूल हुआ, ठीक है। लेकिन हम टेक्नोलॉजी को एक बहुत ही अलग नजरिए से देखते हैं। और हाँ, टेक्नोलॉजी को लेकर टैबूज बहुत है कि महिलाएं टेक्नोलॉजी को लेकर काम नहीं कर सकती हैं, उसे बना नहीं सकती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि महिलाएं टेक्नोलॉजी को यूज कर रही हैं तो उन्हें बनाना भी होगा, क्योंकि जो चीज महिला यूज कर रही है अगर वही महिला खुद उसे नहीं बनाएगी तो उन्हें चलाने में जो दिक्कत आएगी शायद एक पुरुष को नहीं समझ में आएगा। अगर ये इस तरीके से कि अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ अभी, मुझे पता है कि कैसे एक लैपटॉप काम करता है, मेरी मम्मी को नहीं पता है, लेकिन मैं स्लोली स्लोली उनको सिखाती हूँ कि अच्छा इस तरीके से काम करता है, वो सीखती हैं। लेकिन वहीं पे, और मेरे घर में मेरी मम्मी को फोन बहुत अच्छे से यूज करना आता है, मेरे पापा को नहीं। तो ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी पे महिलाएं यूज नहीं, सिर्फ पुरुष अच्छे से यूज करते हैं, मेरे घर में खुद इसका वो है। और साथ ही में देखा जाए तो टैबूस बहुत है टेक्नोलॉजी और महिलाओं को लेकर। लेकिन अगर हम उनको खुद ही नहीं तोड़ेंगे तो वो टैबूस बने ही रहेंगे। अगर मैं अपनी मम्मी को ये नहीं बोलती कि आप भी फोन यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ पापा यूज कर सकते हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ घर की जो लड़की है जिसकी शादी नहीं वही यूज कर सकती है, तो शायद मेरी मम्मी कभी फोन यूज नहीं करती। तो वो चीज उनको बताना बहुत जरूरी है, उस टैबूस को, उनको जो हमारे दिमाग में जो धारणा बनी होती है ना, क्योंकि वो समाज में बहुत पुरानी बना के रखती थी, उसको तोड़ना बहुत जरूरी होता है। तो मुझे लगता है अगर हम वो तोड़ पाए खुद में ही, तो
टेक्नोलॉजी का यूज करना फिर महिलाएं आसानी से कर पाएंगी। और हाँ, टेक्नोलॉजी के लिए जो टैबूज है वो एक बड़ी मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो नामुमकिन, तोड़ने वाली मुश्किल है। हम तोड़ सकते हैं और तोड़ भी रहे हैं, और धीरे धीरे तोड़ो तोड़ देंगे। बंदिशे। तो यस। जैसे तुमने अभी बताया टैबू एंड क्यों इम्पोर्टेंट है लड़कियों को टेक्नोलॉजी के सामने लाना। जैसे हम देख रहे हैं कि आजकल के ज़माना में साइबर क्राइम्स इतने हो रहे हैं। सो साइबर, जैसे आपने बोला कि एवरीथिंग रिलेटेड टू इंटरनेट इज ऑल्सो टेक्नोलॉजी। सो वुमेन के अगेंस्ट में भी साइबर क्राइम्स, वुमेन आर अ वेरी वेरी हाई विक्टिम ऑफ साइबर क्राइम्स। सो अगर वुमेन technology के सामने, if they become tech savvy or they come close to technology, maybe they can take a better stand on such issues, right Priyanka? यस, आई रियली थिंक सो, आई रियली थिंक। क्योंकि ये भी कभी कभी कहा जाता है ना कि अरे यार, इतने इतने क्राइम हो रहे हैं तकनीक को लेकर, महिलाओं को तकनीक नहीं यूज करनी चाहिए। हम्म। लेकिन क्योंकि महिलाएं अगर तकनीक यूज ही नहीं करेंगी, है ना, और उन्हें समझ ही नहीं आएगा उनके साथ हो क्या रहा है। जैसे कि जैसे कि जब मैं पहली बार फेसबुक यूज कर रही थी, मुझे उसकी प्राइवेसी के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन जब मैंने स्लोली स्लोली इसको यूज करना सीखा, मैंने उसकी प्राइवेसी के बारे में जाना। स्लोली स्लोली मैंने इंटरनेट प्राइवेसी के बारे में फिर समझा कि क्या होती है इंटरनेट प्राइवेसी, क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है। अगर मैं यूज ही नहीं करती, मुझे पता ही नहीं चलता। ठीक है। अब मुझे लगता है कि क्राइम बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हमारे देश में हिंसा रुक गई है। हमारे देश में इतने आए दिन रेगुलरली रेप हो रहे हैं हमारे हमारे देश में। ठीक है, वो रुके। तकनीक तकनीक का महिलाओं की हिंसा से लेना देना नहीं है। तकनीक का हिंसा जो महिला पे हो रही है वो सत्ता से है, हमारे जो कल्चर, जो नॉर्म्स हैं उनसे है। हमें उन्हें ब्रेक करने की जरूरत है। क्योंकि और हमारे देश में जो असमानता है, हमें उसे हटाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि हमारे देश में अगर ये हट जाएगा तो बहुत सारे असमानता हमारे देश में बहुत, और जो भेदभाव है उसको हटाने की बहुत जरूरत है, उसको उसको खत्म करने की बहुत जरूरत है। क्योंकि वो महिलाओं के खिलाफ ज्यादा क्या कहे, अपराध को जन्म देती है। उसी की वजह से वुमेन्स क्राइम ज्यादा बढ़ रहे हैं, ना कि टेक्नोलॉजी का यूज करने की वजह से। सो ये एक गलत धारणा है टेक्नोलॉजी को लेके, so which needs to get eradicated as soon as possible. यस। So यस। now our floor is open for questions. Our speaker would love to answer those questions. So if anyone has any question, कुछ भी प्रश्न हो, तो you can just ask to our speaker. Yes. And if we don't have any question, we can move on with our session. Priyanka, the way you have summed up the entire session, I don't think we'll get questions. Let's move ahead with our session. Yes. So Priyanka, we are running short of time right now. So as a conclusion, Priyanka, what would be like your few words? Yes. सो बेसिकली मुझे जो लगता है कि महिलाएं अपनी जिंदगी में कुछ भी कर सकती हैं, लड़कियां अपनी जिंदगी में कुछ भी कर सकती हैं, और हर कोई अपनी जिंदगी में कुछ भी कर सकता है अगर वो सच्ची में करना चाहता है। और मुझे मेरे तरीके से जिंदगी जीने का अधिकार है। मुझे लगता है कि क्योंकि हमारे जो कल्चर है, इंडियन कल्चर, उसमें ये बोला जाता है कि इंसान, उसके साथ साथ उसका परिवार भी होना चाहिए, उसके रिश्ते नाते, उनको सबको साथ लेके चलना चाहिए। लेकिन मेरी जिंदगी मुझे अपने तरीके से जीने का अधिकार है। उसको मैं जैसे तरीके से जीना चाहूँ वैसे जी सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है, हाँ, लड़कियों और महिलाओं को इस बात को समझना। क्योंकि महिलाओं को लगता है कि उनकी जिंदगी सिर्फ उनका परिवार है, उनके बच्चे हैं। लड़कियों को लगता है उनका परिवार ही उनकी जिंदगी है। तो मुझे लगता है कि वो बहुत जरूरी है कि इट्स योर लाइफ, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, जस्ट डू इट एंड स्पीक योर सेल्फ।
That's so beautiful, Priyanka. You know, you have really inspired me and I believe all our viewers. Thank you so much, Priyanka. So, we are heading towards the end of today's session. So, as a concluding remark, I would like to add that education is everything. You know, education is your power. Education is way in life for whatever you want to do. Education is one thing that no one can take away from you, and making women come close to technology is what makes path for a bright future for all of us. So I definitely believe that along with me, all our viewers had an enriching session with Priyanka as we got to know about the dynamics of female education and technology and the beautiful initiatives of FAT. We have been really enlightened by your point of views and perspectives, Priyanka. I would like to repeat that you have really inspired me and our viewers. Each and every word which you have said, all the phrases that you have used to inspire us, and the story which you carry with yourself is highly commendable, is highly inspirational. Thank you so much, Priyanka, for taking your time to be a part of today's session, despite having a busy schedule. We highly appreciate your effort and dedication for conducting this session. Thank you once again, Priyanka. So, at the end of today's session, a special mention and gratitude to all our viewers who have taken out their time and has joined us today. So, your presence is highly valued, and we look forward to having you with us in our further segments. Till then, take care, be safe. See you in our other segments. Thank you, Priyanka. Thank you, all our viewers. Thank you. Yes. Thank you. You can leave, Priyanka.